Namaste everyone, I am Udhesh Kumar and I heartily welcome you all to another continuation video of Unit 1 Introduction to Disaster Management for the UGC NET Paper 2. In the previous video we discussed the disaster management cycle and its phases, and we also covered important objective type questions based on the topic. If you still not watched the previous videos, I recommend you to go for it, as it will help to build robust understanding about the basics, which will be beneficial to understand the upcoming as well as today's lecture. For quick updates, please subscribe to the channel, and today we will explore the application of different concepts related to disasters. Given the vast number of concepts available in the disaster management domain, it is challenging to decide which one wants to cover. However, certain key concepts are commonly applied in disaster management. In this video, we will focus on those concepts and their application. So here we can see those key concepts like hazard, risk, vulnerability, exposure, coping capacity, resilience, conflict, and emergencies. So we can see here this is the application column, and here is the concept column, like a concept of hazard is applicable particularly for hazard mapping and hazard monitoring and forecasting. So what is hazard mapping? So hazard mapping is basically for identifying the areas which are prone to specific hazard, maybe flood, maybe earthquake or landslide, or many others. So this hazard mapping basically help in your use in the land use planning and the zoning regulation, and similarly we have an hazard monitoring and forecasting. It is also an application of this concept, like using the technology to monitor and predict hazards such as the weathering, forecasting for hurricanes or volcanic activity monitoring. तो ये हैज़र्ड के कॉन्सेप्ट की दो एप्लीकेशन हम देख सकते हैं. हैज़र्ड मैपिंग है, दूसरा हैज़र्ड मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग है. तो कोई अगर किसी इलाके में कोई हैज़र्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको मैप कर लेने से ये हेल्प होती है कि हमें पता चलता है कि हैज़र्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कभी डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है. वी कैन टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स अकॉर्डिंगली, एंड अदर प्रोसेस कॉल्ड द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और हैज़र्ड we are mitigating the disaster. So hazard monitoring and forecasting, similarly hazard को monitor करना है और forecast करना, ये एक application है इस concept का. Similarly, say if we choose the risk as a concept, so we can see its application too. So one is the risk assessment and second is the risk management plan. So first let's understand what is the risk assessment, कि कितना रिस्क कहाँ पर है उसका असेसमेंट करना, कि कहीं पर कोई पोटेंशियल रिस्क ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है. तो ये असेसमेंट एक होता है जिससे उस रीजन की कम्युनिटी को जो उस किसी तरीके के क्या लाइकलीहुड है या पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है किसी हैज़र्ड का, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, तो ये मदद करता है बहुत ज़्यादा कि एक डिजास्टर प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन करने में एक इन्फॉर्म मैनर से. तो दिस इज ऑल्सो ए very good utilization of this concept. And here we can see risk management plans as well, कि अगर कोई रिस्क है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसका भी एक प्लान होना चाहिए. तो डेवलपिंग द comprehensive plans and outline strategies to mitigate identified risk such as infrastructure reinforcement और community education program. तो ये दो हमारे एग्जाम्पल है कि अगर कहीं पर बिल्डिंग्स कमज़ोर है और ऐसा है कि वो हाई सिस्मिकली हाईली सेंसिटिव है, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि उसका एक रीइंफोर्समेंट किया जाए, रेट्रोफिटिंग किया जाए. तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो सकता है वहाँ पे, कि अगर कोई रिस्क है तो उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैनेज नहीं करेंगे तो वो हैज़र्ड फिर डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. थर्ड हम देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी है. और अगर आप गौर करेंगे तो जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर की टर्म्स, कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, तो वही कि वल्नरेबिलिटी, रिस्क, हैज़र्ड, एक्सपोजर, कोपिंग कैपेसिटी, ये सभी को हम लोग बेस पैरामीटर रख के इसके एप्लीकेशन को देख रहे हैं यहाँ पर एक तरह से. तो वल्नरेबिलिटी में अगर कहीं वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका भी असेसमेंट, जैसे रिस्क असेसमेंट किया गया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट नहीं करना होता है. तो पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर ज़्यादा वल्नरेबल है. जैसे अगर किसी इलाके में ऐसे बिल्डिंग, ऐसे मकान हैं जो बहुत पुराने हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है. तो ऐसे में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट टास्क, एंड दिस सिस्टम आइडेंटिफाई which are more prone to the disaster or risk to of the disaster. So this
हेल्प इन टारगेटिंग इंटरवेंशन टू द मोस्ट वल्नरेबल एरिया, जहाँ ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हो तो वहाँ पर हम एक्शन लेकर के रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं और वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स का मतलब है कि जो सोशल इंश्योरेंस एंड सेफ्टी नेट्स वहाँ पर प्रोवाइड करना और सपोर्ट, जैसे कि वल्नरेबल अगर पॉपुलेशन, मान लीजिए किसी नदी के किनारे बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही, तो बाढ़ आने की स्थिति पर नदी में जब बहुत सारा पानी आएगा तो वहाँ पर उनके पास एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें वो सभी तरीके की उनकी गतिविधियाँ प्रभावित होंगी और वो फ्लड के लिए वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो इन तरीके से उनकी ससेसिबिलिटी को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इस सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के अंतर्गत इसको हम देख सकते हैं। और फोर्थ हमारा एक्सपोज़र है। एक्सपोज़र का मतलब है कि कुछ इस तरह से, जैसे हमने इसी डेफिनेशंस में भी पढ़ा है कि कौन सी अगर कोई इलाका ज़्यादा एक्सपोज़र है किसी हैज़र्ड पे या किसी तरीके की डिज़ास्टर अगर होती है, तो एक्सपोज़र अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ नुकसान भी ज़्यादा होगा। और ऐसा किया जा सकता है कि अर्बन प्लानिंग करने के बाद अगर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजी बेसिकली एंड दैट मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ हैज़र्ड सच एज रिस्ट्रिक्टिंग कंस्ट्रक्शन इन फ्लड प्रोन एरिया। मतलब जहाँ पर अगर नदी है तो उसके पास में जो कई बार इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, इस तरीके से लोग घर बनाने लगते हैं, तो वहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कंस्ट्रक्शन को, तो फ्लड प्रोन एरियाज़ के अंदर वहाँ पर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन होने पर कोई भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन जब होगा नहीं, तो फ्लड आने की स्थिति पर वहाँ पर इस पहले से किए गए अर्बन प्लानिंग से हमें बहुत मदद मिलेगी कि ज़्यादा एक्सपोजर उस वहाँ पर पॉपुलेशन का नहीं होगा, तो नुकसान भी कम होगा जान और माल का। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन में हम अगर देखें, इसका एप्लीकेशन है एक एक्सपोजर का, तो बिल्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद कंसिडरेशन द पोटेंशियल एक्सपोजर ऑफ हैज़र्ड इंश्योरिंग दे आर रेजिलिएंट एंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एडवर्स कंडीशन। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन का मतलब है कम से कम जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कल भी बात, जो अभी पिछले लेक्चर में भी ये बात कर रहे थे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल हैं, पुलिस स्टेशन है, जिनका फंक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है आपदाओं की स्थिति में, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के राहत और बचाव के सभी कार्यों को सही से ट्रीटमेंट देने के काम को किया जा सके सुचारू रूप से। तो कम से कम उसको हम जो है रेजिलिएंट ज़रूर बनाएं, रेजिलिएंट उनका एक्सपोजर कम से कम हो, और इस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन से भी एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। और ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया है, दिल्ली के अंदर ऐसा है। तो 5 कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनको एक प्रोग्राम के अंडर इसको रिट्रोफिटिंग किया गया है कि कम से कम अगर सेस्मिक एक्टिविटी होती है उस रीजन के अंदर, तो कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा बच जाता तो हमारे पास में जो रिस्पॉन्स है उसमें मदद बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद कोपिंग कैपेसिटी, यानी अगर कोई आपदा आती है तो समाज कितने या प्रभावित लोग कितनी आसानी से कोप अप कर सकते हैं उस सिचुएशन की। तो इसके लिए वो तभी कोप अप कर पाएंगे कि उनको अगर पहले से इमरजेंसी ट्रेनिंग और रिसोर्स एलोकेशन की कब क्या चाहिए, तो ये सब पता हो, तो रिसोर्स एलोकेशन पहले से ही होकर अगर हम करते हैं, तो ये एप्लीकेशन है कोपिंग कैपेसिटी का, कि जिससे कि हम कोपिंग कैपेसिटी उस कम्युनिटी की बढ़ा सकते हैं। Under this, we provide the training for communities and emergency responders to enhance their ability to cope with disaster. You can read in this definition as well. So, we can provide the first aid training, CPR training, and evacuation procedures. तो इस तरह से इमरजेंसी ट्रेनिंग अगर होती है तो कोपिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। रिसोर्स एलोकेशन इज अनदर एप्लीकेशन विच इज ensuring that resources such as food, water, and medical supplies are available and accessible during the emergencies to support effective coping capacity, कोपिंग मैकेनिज्म, जिससे कि मदद मिलती है। अगर फूड, वाटर और मेडिकल सप्लाई, क्लीन वाटर की सप्लाई, बाढ़ की स्थिति में हर तरफ पानी होता है लेकिन वो पिया नहीं जा सकता, इसलिए कई बार की पीने का पानी की कमी होती है। तो इस तरीके से अगर पहले से इंतज़ाम होते हैं तो फूड, वाटर एंड मेडिकल सप्लाईज़ की पार्टिकुलरली तो रिस्पॉन्स के टाइम पे बहुत मददगार होता है। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो रेजिलियंस एक टर्म है, इसका भी एप्लीकेशन है। जैसे रेजिलियंस का मतलब होता है कितना रेसिस्ट कर पाएगी कोई सोसाइटी, कम्युनिटी के अंदर कितनी रेजिलियंस है किसी तरीके की आपदा से निपटने के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशिएटिव ऑल दोस इनिशिएटिव विच आर एम्ड एट बिल्डिंग कम्युनिटी रेजिलियंस थ्रू एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जैसे हमने बात की थी आपदा मित्र जैसी स्कीम्स की, तो वो बेसिकली हम उनकी रेजिलियंस को और कोपिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा है कि एक कहावत है कि कोई भी व्यक्ति जो है
वो भूकंप से नहीं मरता। भूकंप एक भौगोलिक हम कह सकते हैं प्रक्रिया है जो हमेशा से चलती आई है, जैसे हमारा ग्रह बना है, लेकिन जब उसके बीच में इंसान आ जाता है तब वो प्रभावित होते हैं। नो वन डाइज ड्यू टू एन अर्थक्वेक, बट दे में die due to a poorly designed building or infrastructure. So here resilient infrastructure is important. So designing and constructing building, roads and other infrastructure to be resilient to disasters, incorporating features that allow them to absorb and recover from impacts. और ये हमारा रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की बात को कहता है जिससे कि आपदाओं की स्थिति पे वो टिके रहे, रोड बह ना जाए बाढ़ की स्थिति से, और इस तरीके से और भी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी को लेके एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी लिया गया है जिसको हम कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI कहते हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इनिशिएट किया था, और भारत का एक इनिशिएटिव था जिसको ग्लोबली सपोर्ट किया गया, UN में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसके लगभग 35 से ऊपर आई थिंक 37 या 39 के अराउंड मेंबर्स कंट्रीज हो चुके हैं। तो रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वी विल डिस्कस इट इन अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन का मतलब है, हम पहले भी देख चुके हैं, इनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम बार बार रिपीटिशन नहीं करेंगे उसका। बट कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव प्लानिंग करने से होता है कि इंटीग्रेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस इनटू द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग टू इंश्योर दैट द इंटरवेंशन डू नॉट exacerbate the existing conflicts and instead contribute to peace building। ऐसा नहीं हो कि हमने इंटरवेंशन किया और वहाँ स्थिति और बिगड़ गई, तो वहाँ पे पीस बिल्डिंग को कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट humanitarian assistance providing the neutral and impartial assistance during the disaster in conflict zones, ensuring that aids reaches those in need without fueling the tension। ऐसी जगह पर, जैसे ऐसा कभी, इसका एक उदाहरण है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने गए हैं किसी ट्राइबल एरिया में, अगर कोई आपदा आई है तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर गए हैं तो आपदा में मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज होगी। तो इस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को हम अगर सही से वहाँ पर इन प्लेस करते हैं तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से अननेसेसरी हम बच सकते हैं। और इमरजेंसीज के लास्ट टाइम इस पॉइंट को कवर करने के लिए एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव में हम देखें अगर, तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने देखा था। डेफिनेशन में इमरजेंसी मतलब एक सडन अकरेंस हुई है किसी चीज़ की, तो इमरजेंसी में भी प्रिपेयर्डनेस प्लान, जैसे अगर किसी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहाँ भी इमरजेंसी वार्ड होता है, इसलिए कि अगर किसी को कोई चोट लगी अचानक तो या किसी तरीके की ऐसी स्थिति है जो इमरजेंसी कंडीशन है, तो वहाँ पर सीधे उसको भर्ती किया जा सके या देखा जा सके। तो डेवलपिंग एंड रेगुलरली अपडेटिंग इमरजेंसी प्लान दैट आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन, इवैक्यूएशन एंड कोऑर्डिनेशन एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। एंड last but not the least here, which is the early warning system, as we were discussing in the previous video as well। The forewarned is forearmed, जिसको पहले अगर पता चल जाता है किसी बात का तो वो पहले से तैयारी भी कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे पार्टिकुलरली अगर हम बात करें कि साइक्लोन के अंदर बहुत सारी जानें जाया करती थी जब वो हिट किया करते थे कोस्टल रीजन को ज़्यादातर, बट अर्ली वार्निंग सिस्टम जो डेवलप किए गए हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली है कि हम अब ज़ीरो तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारा जो बहुत सारी जान और बहुत सारा जो नुकसान होता था उससे अब बचाव है कि हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो साइक्लोन का क्या कोर्स है और किस तरीका पर वो हिट कितने बजे करने वाला है। और इसके इंडिया के इस साइंटिफिक एक्सेलेंस को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी सराहा है, और इसमें IMD केवल भारत को ही नहीं है, इसके एडजॉइनिंग जो देश हैं पड़ोसी देश हैं उनको भी मदद करता है सटीक सूचना देकर। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स केवल साइक्लोन नहीं, बहुत सारे और भी जो आपदाएं हैं उनकी स्थिति में, जैसे फ्लड वार्निंग के लिए या सुनामी वार्निंग के लिए, इस तरीके से इसमें बहुत इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन एंड so we can there can be lots of concept and lots of applications, and the good thing is we are going to cover a comprehensive syllabus. That's why we are going to have an exposure to many concepts and their respective applications. And if you wish to receive the study material in PDF form and
you may scan this code. So this is our WhatsApp group for the UGC-NET disaster management preparation, and you can scan this code. And if there are any queries or any further information you required on today's topic or today's lecture, so you can feel free to contact me with these are my contact details available, and we will discuss in our next video about the next topic of Unit 1. So for now, I'm ending this video. Thank you so much, and you can subscribe the channel for the quick updates of our activities. Thank you.